ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਸਮਝਣਾ। ਬਸ ਤਿੰਨ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਤੀਜੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਨਦਰ ਵਰਡ 'ਚ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, if for every image there exists pre-image, if for every image there exists pre-image, if for every image ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕੋਡੋਮੇਨ। देयर एग्जिस्ट प्री इमेज किस होएगा? डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ। then function is on to ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ABCD, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਟ 1 ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਸੋਚੋ ਔਨ ਟੂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖ 1 ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਨਾਟ 1 ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾਟ 1 ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਇਮੇਜਿਸ, ਜਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜਿਸ ਹੈਵ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਇਮੇਜਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗਾ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਬਟ C ਅਤੇ D ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, C ਅਤੇ D ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰੇਂਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਇੱਦਾਂ ਲਈਏ A ਅਤੇ B। ਕੋਡੋਮੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਏ? ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੈਗੀ ABCD, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਂਜ ਕੋਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਇਮੇਜ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਰੇਂਜ ਔਰ ਕੋਡੋਮੇਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 11th ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 11 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆਉਣੀ। ਔਰ ਜੇ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। A ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। B ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ 4 5 6 7, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 1 4 2 5 3 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 1 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2011 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 1 2 3, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ A to B ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆ A ਆ B ਹੈ। B ਹੈਗਾ 4 5 6 7, 1 ਨੇ 4 ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਯੈਸ। 2 ਨੇ 5 ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਯੈਸ। 3 ਨੇ 6 ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ 1 ਨਾਲ 1 ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਬਚ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਨਾਲ 1 ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ 1 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਟੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਇਮੇਜ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ, 7 ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਮੇਜ 7 ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਟ ਔਨ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਟ ਔਨ ਟੂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੇਂਜ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, 4 5 6 ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 5 6 7। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਕੋਡੋਮੇਨ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਨੋਟ ਔਨ ਟੂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ 2011 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 1-1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹ 4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, 1 ਔਨ ਟੂ, ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਈਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਈਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਔਨ ਟੂ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਤੀਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਨ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ NCERT 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ R to R। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਅਗਰ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, 0 ਹੈ ਤਾਂ 0 ਹੈ, -1 ਹੈ ਤਾਂ x ਲੈਸ 0। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਨੇਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਇਹ 1 ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1 ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ x1 ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ x2 ਤੇ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈ f ਆਫ x1 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f ਆਫ x2, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ग्राफ तो भी पता लग जाता। खैर, तो अगर मैं x1 ले लिया 1, ठीक है, तो x2 ले लिया मैं सपोज 2, तो f ऑफ x1 की होएगा f ऑफ 1 की है 0 तो वड्डी तो वैल्यू की है 1। f ऑफ x2 ते की लेना f ऑफ 2 का आंसर की है 0 तो वड्डे ते आंसर की 1। सो टैली कर गया। वो तो कहता जे x1 x2 डिफरेंट होवे तो आंसर भी डिफरेंट होवे, बट आपा ने की किया x1 x2 डिफरेंट है, इट इंप्लाइज f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, सो देयरफॉर नॉट 1 इन्नी गल। पेपर 'ਚ आया हुआ क्वेश्चन है जी। बहुत लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि बहुत ईजी अप्रोच हैगी है, बस तुसी उस अप्रोच ते फोकस करना भी मैं कर की रहा हाँ तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो फोन ते लिखते हो, लिखण का ही तरीका हो जाता भी ऐ थोड़ा जिहा टेढ़ा हो जाता तुहाडे कोल। ठीक है। सो कोई बहुता रोले वाली गलबात है नहीं। हुण अगर आप देखिए तुहाडे पास, क्या असी ऑन टू वाली नेचर इहदी चेक कर सकते हैं? यस। कलर चेंज कर रहे हैं जी, सिर्फ तुहानूं दिस जावे ऑन टू वाला पार्ट किहड़ा हैगा। ऑन टू ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਡਮੇਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਡਮੇਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਰੇਂਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਰ ਹੀ 3 ਨੇ, -1 0 ਤੇ 1, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤਾਂ 1 ਹੈ, 0 ਤੇ 0 ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਾ, ਇਸ ਮਤਲਬ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਕੋਡਮੇਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਡਮੇਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। देयरफॉर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ नॉट ऑन टू। सो इन्नी की चीज़ आपने करनी है जी। तुहाडे कोल क्वेश्चन हो गया तुहाडा, ठीक हो गया जी। सो आह वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। ठीक है। सो लो जी, अगे हैगा तुहाडे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप इसकी गल करिए तुहाडे कोल, ठीक है, तो आपां नूं उसने क्वेश्चन दिता है कि एफ जिहड़ा हैगा R to R है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, तो यदि 1 ते ऑन टू नेचर चेक करो। अगर तुसी एफ एक्स नूं वाई सोची देना, वाई इक्वल टू एक्स स्केयर, अगर तुसी ग्राफ देखो रियल तो ही है ना। सो आ थोड़ा ग्राफ है, और मैं कल भी एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा नहीं रिपीट करूँगा। सो ये 2 थां ते कट रहा। सो ये नॉट 1 है, ये मेरा कल किया हुआ क्वेश्चन।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਡੋਮੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੇਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਆ ਰੀਅਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਟ ਔਨ ਟੂ। ਸੋ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। सो दोनों डेफिनेशन समझ आ गई, दोनों पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो चलिए जी तीसरे बच्चे अगले वाले क्वेश्चन। सो पेज नंबर 5 ते आ गए जी अपन थोड़े को। तो ये लिए अपन ने क्या करना है थोड़े को, ठीक है। सो अपन क्वेश्चन दे देता एक एफ फ्रॉम आर टू आर और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है जी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हुण आपां ने जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बई इसनूं आपां देखना कि 1 है कि नहीं हैगा तुहाडे कोल। तो हुण जिहड़ा है ना, अगर आपां इहदी जे रफली इहदी डायग्राम देखिए थोड़ी जी ऐ ते थोड़ा जिहा ऐ हुंदा क्यूब, तो जे तुसीं इहनूं कटोगे तो इक्को थां ते कटदा, तो श्योरली 1 तो यह हैगा। 11 की किताब च एक्स क्यूब का ग्राफ देख लो, इदां दा ही मिलेगा तुहाडे कोल, ते इहनूं तुसीं 1 कह देते, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल। तो जे बंदा कहे नहीं सर मैं ट्रैडिशनली करके दिखाओ जी, मैनू नहीं ग्राफ आंदा, हुण दसो की करना। तो ये आपां लेट करना हुंदा, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर, नाल लिखना डोमेन पत, क्योंकि दो आर ने, अगले नूं की पता तुसीं पहला लिया कि दूजा लिया। सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू तुसीं एफ ऑफ x2 लिया, ठीक है। सो उस तो बाद तुसीं की करता, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब हो गया। सो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। सो x1 माइनस x2 ए स्केयर, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। हुण आ चीज़ पॉजिटिव है, एक कदे 0 नहीं हो सकती, देयरफॉर मतलब आ वाली चीज़ x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर प्लस x1 x2 ये पॉजिटिव है, ठीक है। जिससे तुसी ख्याल रखना है कि तुहाडे कोल, ठीक है। कोशिश करनी है रीज़न फाइंड करने की कितना पॉजिटिव है। परफेक्ट स्केयर बना के देख लो, ट्राई टू मेक परफेक्ट स्केयर, आराम नाल तुहानूं समझ आ जाएगी, ठीक है। सो इसका मतलब ये तुहाडी 1 जी हैगी है तुहाडे कोल नहीं है, ठीक है जी। हुण अगर आपां ऑन टू की गल करिए, ऑन टू की अगर आप गल करिए, ऑन टू विच कोडोमेन जिहड़ी है वो आर है, तो अगर आप रेंज की गल करिए वो भी आर है, क्योंकि इधरों भी तुसीं हाइट लेंदे जाना, इधरों भी तुसीं घटते जाना, मतलब ये इस तरह चली जानी, ये इस तरह चली जानी है। तो यदा मतलब कोडोमेन तो रेंज है जी बराबर है, रेंज वाई दी वैल्यूज़ नूं कहंदे ने। सो देयरफॉर ऑन टू तो होएगा। सो ये वाली चीज़ तुहाडी है, ठीक हो गया जी। सो ये वाला क्वेश्चन भी आपने क्यूबिक फंक्शन जोड़ा है कर लिया। तुहाडे कोल गल उही सी, क्या मैनू ग्राफ आंदा है, जे ग्राफ पढ़िया है। देखो सिंपल जी गल है, जे तो 11 च तुक्के मार के ही पास होए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के, फिर तो श्योरली दिक्कत आ जानी हैगी, ठीक है जी। सो उस दिक्कत को ओवरकम करो जी, फिर जे आ जाती है तो बई ध्यान नाल करो, ठीक है। तो अगर आप फंक्शन ले लिया जी, नेचुरल तो नेचुरल एफ एन इज इक्वल टू n/2 अगर n ऑड है, सो n/2 अगर n इवन है,
n+1/2 when n is odd, n/2 when n is even। ये थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ऑन टू नेचर ਆਪਾਂ ने देखनी है। नैचुरल टू नैचुरल ही हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो अगर ਤੁਸੀਂ देखो ऑड एज भरना 1 डालोगे तो आंसर 1+1/2 ਤੇ आंसर 1 आ रहा है। ਈਵਨ ਇੱਥੇ 2 डालोगे तो आंसर 1 आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ जा रहा है। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਕੀ है, ਭਰਨਾ ਤਾਂ देखो ना डोमेन है, ये डोमेन नैचुरल है। ਤੁਸੀਂ सपोज ਆਪਾਂ ਲੈ लिया n1 1 ले लिया, देयरफॉर n1 ऑड होया तो f ऑफ n1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ऑड, तो n1 + 1/2, n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਹੈ 1 + 1/2। सो आंसर ਕੀ आ गया 1। आप n2 ले लिया, n2 2 ले लिया, सो 2 की है ईवन, तो f ऑफ n2 ईवन वाले पर होगा n2/2, n2 की वैल्यू कितनी है 2 2 2 1। मतलब कुल मिला के n1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम n2 बट स्टिल दे सेम गिव सेम रिजल्ट। डिफरेंट होने के बावजूद भी वो रिजल्ट सेम दे रहा है। ਇਹਦਾ मतलब की होया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंट होने के बावजूद रिजल्ट सेम दे रहा है, मीनस ਤੁਹਾਡੀ डेफिनेशन वर्क नहीं कर रही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ मतलब ये नॉट 1 1 है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। सो आंसर आ गया नॉट 1 1। जो नॉट 1 1 वाली ऑप्शन ना हो तो मैनी 1 देख लेना अगर, सो मैनी 1 वाली होगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अब वारी करते हैं आप ऑन टू दी, ठीक है जी। अगर आप ऑन टू की गल करिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं रेंज निकालनी हो, मैं तुम्हें दो तरह प्रूफ देना वा। दो तरह प्रूफ देने का मतलब है भी एक नूं असीं रिगरस प्रूफ कहने, एक हुंदा बई बट ठीक है भी हर बंदे नूं समझ आ जाए। सो मैं दोनों तरह के प्रूफ देना वा। अगर तुहानूं लगे भी तुसीं 95 96 97 वाले बच्चे हो, लगना भी चाहिए तुहाडे कोल। हरेक बंदे की अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट होंदी है, हरेक नूं सोचना चाहिए मेरे 97 आ सकते हो। सो इन केस तुसीं सोचते हो भी मेरे 95 97 वाली लाइन है, दैन गो फॉर रिगरस प्रूफ। अगर तुहानूं पूरा अपने आप की फुल बिलीफ है भी आप 60 65 वाले हैगे तो बहुत ही मुश्किल चीज़ सानूं नहीं समझ आती, मैं तुहानूं तुहाडे ते छड्ड दित्ता, ठीक है। उस केस दे विच तुसीं फिर जिहड़ा हैगा तुसीं डायरैक्ट मैथड ला लिओ। सो दोनों ऑप्शनस दे रहे हैं जी अगले पार्ट विच। तो देखिए जी कितना, पहले मैं स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर ला क्योंकि फिर मैंने बार बार पेज चकना पैना। सो नैचुरल टू नैचुरल है जी, fn है n+1/2 अगर n ऑड है, n/2 अगर n ईवन है। सो n+1/2 अगर n ऑड है, n/2 जिहड़ा हैगा इफ n ईवन हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो अगर ये वाली चीज़ है, हुण आपां ने ध्यान नाल देखना। तो दो ऑप्शनस मैं तुहानूं दे रहा। पहला तरीका तुसीं ना ऐदा बना के देख लो, ये नैचुरल है ना 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इत्थों जाना आपां ने, जाना भी नैचुरल ते ही है 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अगर मैं f ऑफ 1 लेना वा, ठीक है, जनरलाइजेशन कर f ऑफ 1 ऑड है, आंसर कितना आया 1 आया। सो ए 1 ना जुड़ गया। अगर मैं f ऑफ 2 लेना वा तो दूजे च भरना, आंसर आ गया 1। सो इस इफैक्ट ने थोड़े 1 1 तो गवाया सीगा, बट मैं हुण 1 1 थोड़ी ले रहा, मैं तो हुण अगर मैं f ऑफ 3 ले रहा तो ऑड विच भरूगा, आंसर 2 आ जाऊगा। अगर मैं f ऑफ 4 ले रहा तो ईवन विच भरूगा तो 2, माने मेरा 3 वाले का भी आंसर 2 है तो 3 पर आंसर 2 तो मेरे 4 वाले का भी आंसर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इत्थे खड़ के देखा फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज, तो उत्थे नहीं कि असीं देयर एग्जिस्ट यूनीक प्री इमेज 2 एग्जिस्ट करते, अपनी चिंता नहीं, ये पीछे 2 प्री इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज एक तो घट्टो घट हैगा ही हैगा। अगर मैं f ऑफ 5 लेना तो 6/2 3 आएगा। अगर मैं f ऑफ 6 लेना तो भी 6/2 3 आएगा। मतलब उत्थे 5 + 6 6 बनया, अब वाला 5 + 6 6 बनया, तो सीधा ही अल्टीमेटली थोड़ा 5 भी 3 ते कन्वर्ज करता 6 भी। ਇਹਦਾ मतलब है तुसीं अगे अगे चली जाओ
ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 4 ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫॉर ਐਵਰੀ ਇਮੇਜ देयर एग्जिस्ट प्री इमेज, ठीक है। ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਰੇਂਜ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो कोडोमेन ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, सो देयरफॉर इक्वल, जे इक्वल हो गए तो यह ऑन टू हो जाएगा। सो नॉट 1 1 सीगा ये, बट ऑन टू सीगा तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, हाँ जी ठीक हो गया जी तुहाडे कोल। हुण आपां ने अगर थोड़ा जिहा इस, वैसे ठीक है कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पर जे इनू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल विच लैके जाना, इनू इस तरह एडजस्ट करना हैगा भी तुहानूं लगे भी नहीं जिहड़ा हैगा तुहाडे पास मैनूं रिगरस प्रूफ चाहिदा हैगा तुहाडे कोल, दैन असीं रिगरस प्रूफ किद्दां देवांगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी। तो अगर आ वाली चीज़ होगी तुहाडे कोल तो आप अगे देखिए। सो पेज फटिया हुआ है जी। तो अगर आप देखो जो पेपर भी आने वाला, मैं एक एक चीज़ खुद ही सॉल्व करवा रहा हूँ, उस तो बाद सिर्फ एक चीज़ कहना भाई NCERT देख लियो तुहाडे कोल। सो मैनूं लगता नहीं कि बहुत अच्छी जिहड़ी हैगी है बई आपां तुहाडे कोल तुसीं क्वेश्चनस ना करो, या तुसीं कहो बई जिहड़ा हैगा भी उस कोई प्रॉब्लम ही नहीं या बहुत सौखी बुक है, तुसीं सिर्फ उस एक बार चेक कर लेना। और मेरे हिसाब नाल NCERT भी एडी क्लासिकल बुक है कि उस पेपर भी सीधा आ जाता तो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड दे है, ठीक है जी। सो अगर आपां ने फंक्शन की डिफाइन किया, असी फंक्शन आपां नैचुरल टू नैचुरल डिफाइन किया, और FN इज इक्वल टू N बाई, ठीक है, N ऑड तो N बाई 2 वैन N ईवन, ठीक है जी। हुण आपां कहने कि देखो अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखदा वा, सपोज मेरी नोटेशन ये है, मतलब आ वाला एन जिहड़ा F च भरदे आ ये प्री इमेज है, मतलब ये डोमेन च हुंदा, आ जिहड़ा आंसर हुंदा ये रेंज विच हुंदा, या को डोमेन च कह लो, जो इमेज बन के आऊगा तो रेंज विच ही होगा। मतलब जिहड़ा एन तुसीं फिल करते हो वो डोमेन है, जिहड़ा होगा रेंज। इहदा मतलब रेंज वाली साइड ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ या ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी बई ईवन या ਤੁਸੀਂ फिल करते हो तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर आता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी, ठीक है। तो हुण आपां सिर्फ यही कह रहे हैं बई ऑड नंबर के कोरसपोंडिंग भी एक आंसर आता है, ईवन नंबर के कोरसपोंडिंग भी एक आंसर आता है, बस यही कहने। यदा मतलब ऑड नंबर लिखण का तरीका की हुंदा, या 2n+1 या 2n-1, ठीक है, यही होगा जी। या तो तुसीं 2n+1 लै लोगे या 2n-1 लै लोगे, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। आपां तां देयर एग्जिस्ट नंबर चाहिए, ऑड की रिप्रजेंटेशन चाहिए, ठीक है। लैट n बिलोंग्स टू नैचुरल, ये रिगरस ट्रीटमेंट है जी, वह आल्टरनेटिव है। अगर तुहानूं वो अच्छा लगे बिल्कुल वो कर लियो तुहाडे कोल, बट स्टिल मैं कह रहा वां तुहाडे पास, ठीक है, क्योंकि तुसीं तुहाडे चों कई 99 नंबर लैण वाले भी होणगे, सो 100 वाले भी होणगे श्योरली तुहाडे कोल, ठीक है। तो फिर जिहड़ा हैगा लैट n बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है। हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनना, लैट n बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर, ठीक है। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है देन द नंबर 2n-1 इज आल्सो ऑड। अरे दुगना करोगे तो ऑड का जोड़ा है 2 टाइम्स करोगे ईवन हो जाएगा, ईवन चो एक कट जाएगा तो ऑड हो जाएगा। अब अगर f ऑफ 2n-1 आप इतने फिल करते हैं, ठीक है जी, 2n-1 फिल करते हैं तो थोड़ा आंसर की आऊगा, आंसर ये आऊगा जो 2n-, अगर देखो n इज ऑड है 2n-1 इज आल्सो, जो मैं ऑड में फिल करा इतने मैं ये नंबर ऑड मनिया होया, तो ऑड ने उपरली डेफिनेशन फिट पैना, ठीक है। सो ऑड ने उपरले जो रहना तो आंसर थोड़ा जोड़ा है n आ जाएगा, ठीक है। यदा मतलब की होया, यदा मतलब ये होया तुहाडे कोल, ठीक है, ध्यान नाल सुनना, तुहाडे कोल भी अगर तुसी n कोई ध्यान नाल देखो ना, जो इसे फिल होया तुहाडे कोल वो आपां जो फिल करते हैं वो वाली चीज़ असी कहने तुहाडे कोल डोमेन फिल आ n तो ही असी चेक करते सी भी या तो n ऑड होएगा या तो n ईवन होएगा, है ना।
एन की बारी कह रहे हैं ना ये भी है एन और अगर एन ऑड होया तो इदा अगर एन ईवन होया तो तुसी कुछ इदा का जोड़ा होगी। तो मैं ऑड ले लिया, मैं क्या 2n-1 ऑड है। तो जो ये 2n-1 ठीक है जो मैं फिल किया तो फिल करके मेरा आंसर आ गया एन। एन की है इमेज, ठीक है। यदा मतलब की होया, यदा मतलब होया ये थोड़ा इमेज आ गया। फॉर एवरी इमेज एन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज, मतलब इस एन लिए पिछे प्री इमेज हैगा है, ठीक है। तो जे मैं आगे लवा अगर एन ईवन है तो 2n भी ईवन होएगा, पक्की गल है। तो जे मैं एफ ऑफ 2n लवा तो 2n/2 कटिया गया। तो यदा मतलब है थोड़े कोल फॉर एवरी एन, ठीक है ए एन आ गया। तो यदा मतलब इस एन के कोरसपोंडिंग पिछे थोड़े कोल जोड़ा है, मतलब आ वाली जी चीज़ है डोमेन है ये प्री इमेज होंगी है। आ वाला इमेज के कोरसपोंडिंग पिछे प्री इमेज है, इमेज के कोरसपोंडिंग पिछे प्री इमेज है। 10 फॉर एवरी एन बिलोंग टू एन, चाहे ईवन होवे चाहे ऑड होवे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन प्री इमेज, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर ऑन टू। सो ये जी ट्रीटमेंट है ये थोड़ी जी रिगरस है, जो थोड़ा ये समझ आ जाए तो बहुत बहुत वधिया गल है। अदरवाइज जो पहले वाला मैथड है नंबर उससे भी नहीं कटे जाते हैं थोड़े को, ठीक है जी, क्योंकि ये 100 होना जनरलाइजेशन कर देता बंदा थोड़े को। सो ये वाली चीज़ थोड़ी जी हैगी आपने कर ली है। सो तुहानू इस तरह के क्वेश्चन का भी एक आइडिया हो गया थोड़े को, ठीक है जी। सो हुण एक बिल्कुल छोटा जिहा क्वेश्चन है जी थोड़े को, वो क्वेश्चन है थोड़े को एक मिनट रुक जाओ जी, थोड़े को पेपर वाला क्वेश्चन है वो ना ए दिता हुआ NCERT जिस तरह के क्वेश्चन है ने। सो ए की वैल्यू दी हुई है R-3। सो एक पेपर च आया हुआ जी 2 टाइम्स। सो ए R-3 है थोड़े को, बी जोड़ा है थोड़े को R-3 हो गया, बी R-1 है। तो आपां एफ ए तो बी तक डिफाइन कर दिता, की डिफाइन किया fx = x-2 नीचे x-3, ठीक है जी। तो तुसी सिर्फ ये देखना है कि 1-1 है कि नहीं है ऑन टू देख, बस इस तो उत्ते इस बार क्वेश्चन ही नहीं बनता कोई। अगे तय होंदा सीगा 1-1 ऑन टू हो गया एंड हैंस फाइंड इनवर्स। सो इस बार इनवर्स की स्टोरी खत्म है। तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा हुण अगर आप इत्थे देखिए तो आ वाली चीज़ नूं 1-1 ऑन टू समझण लई की तुसीं x1, x2 किहदे विच लोगे डोमेन च, सच दैट f(x1) = f(x2). सो x1-2 नीचे x1-3, सो x2-2 नीचे x2-3, ठीक है जी। सो कॉमन कट के आप सॉरी क्रॉस कर दिए सीधी, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ इन्हें ना मल्टीप्लाई करना x1 x2 आ जाना, फिर इन्हें बनना 3x1 आ जाना, फिर इन्हें 2x2 आ जाना, फिर इतने 6 आ जाना, x1 x2 आ जाना, -3x2 आ जाना, -2x1 आ जाना, +6 आता कैंसल हो जाना, ठीक है। हूँ जो 3 है 3 को 2 आ जा जोड़ा है मतलब 3x1 है वो को 2x1 आ जाएगा, इधर 3x2 है ये को 2x2 चला जाएगा। सो -x1 = -x2, x1 = x2। सो ये मतलब है थोड़े को बई असी उस 1-1 शो कर देते। हुण आपां निकालनी होंगी है रेंज, इस तरह का क्वेश्चन होवे तो तुसी 11 च रेंज निकालनी सीखी होगी। तो इनू y पुट कर लें आप, सो क्रॉस कर देना। तो y इन टर्म्स ऑफ x है ना, x इन टर्म्स ऑफ y कटो, yx - y x - 2 अपने उधर आ गया y+2, इधर आ गया yx - x। सो x कॉमन कर लिया, सो x की वैल्यू आ गई
सो अपने को y सीगा x-2 नीचे x-3 क्रॉस करना है, माड़ी जी गड़बड़ होगी जी, देख लो yx है इतने 3y सीगा, ठीक है। उधर अपने को उधर तो ठीक है, तो ये वाली चीज़ जी हैगी है yx हो गया, तो 3y उधर चला जाएगा, इधर अगे 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, सो 3y + 2 आ जाएगा, नीचे y - 1। सो y की नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू ए तो शुरू हुई सी 3 नहीं सीगा, तो y की वैल्यू दे विच की नहीं होना चाहिए y, अगर y 1 हो जाता तो x इनफाइनाइट हो जाता, जबकि x अपना बड़ा ठीक ठाक फाइनाइट है क्योंकि ये नहीं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होएगा कि जी थोड़ी रेंज होएगी ना वो रियल नंबर चो है, तो बी की सो इसका मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, देयरफॉर ऑन टू। सो इन्ना है जी, क्वेश्चन लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा, तुहाडे कोल स्क्रीन ते तुहानू दिस ही रहा सारा कुछ। सो इन्ना तुसीं कर लेना जी, कल नवे क्वेश्चन नाल फिर नवे लेक्चर। थैंक यू।